Good morning, students. In previous lecture, I discussed in detail about peptides. In today's lecture, I will discuss on today's lecture is on proteins. Proteins are essential constituents of cells. Protein word arises from word proteosis, which means first. That is, these proteins are chemical substances which are essential for growth and maintenance of life. Protein is present in every part of our body, whether it is skin, muscle, hair, organs, fingers, etc. Proteins are macromolecular polymers formed by amino acids. In proteins, various amino acids are linked through peptides bond, and sequence of the peptide amino acid determine the biological property of that protein. Now, in proteins, amino acids are the basic unit. Proteins are complex natural polymers. Proteins have high molecular mass, and their chain is largely made up of amino acid. Each living cell is made up of thousands of different kind of proteins. Now, classification of proteins. Proteins can be classified on the basis of their three-dimensional structure like fibrous and globular protein, and on the basis of the hydrolytic product. First, we will discuss about classification of proteins on the basis of their three-dimensional structure. According to their three-dimensional structure, proteins are classified as fibrous protein and globular protein. In fibrous proteins consist of linear thread-like molecules which tend to lie side by side to form fibers. These fibers are held together by hydrogen bonds which provide fibrous protein the required strength. These fibrous proteins serve as structural material. These proteins are insoluble in water, stable to moderate change in temperature and pH. That's why these fibrous proteins serve as structural material. These proteins are present in, fibrous protein are present in keratin, fibrin, elastin and collagen. Next type of protein is globular protein. In globular protein, polypeptide chain is folded around itself in such a way to give protein a spheroidal shape. जो पॉलीपेप्टाइड है चेन वो अपने ऊपर क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी, और फोल्डिंग इस तरीके से होगी जो मॉलिक्यूल है उसकी जो प्रोटीन है उसकी शेप क्या हो जाएगी, स्फीराइडल हो जाएगी. ठीक है. जब ये पॉलीपेप्टाइड्स चेन फोल्ड होगी तो जो आपका लिपोफिलिक पार्ट है वो कहाँ जाएगा, ये गलत है बेटा, वो जाता है इनसाइड और हाइड्रोफिलिक पार्ट जाता है आउटसाइड. तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसका इनसाइड पार्ट जो होगा वो क्या होगा, लिपोफिलिक यानी लिपिड लविंग, और जो आउटसाइड पार्ट है वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग. अब उसका ग्लोबुलर प्रोटीन का जो आउटसाइड पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है, और हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसका इन्वायरमेंट क्या है, हाइड्रोफिलिक है. उसमें क्या है, एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, तो वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा. इस वजह से ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे. तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसमें जब पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होगी स्फीराइडल शेप बनाने के लिए, तो उसका इनर पार्ट जो हो जाएगा लिपोफिलिक होगा, यानी कि इनर पार्ट क्या हो जाएगा, लिपिड लविंग होगा, और आउटर पार्ट क्या हो जाएगा, वाटर लविंग. अब आउटर पार्ट क्या है, वाटर लविंग है, तो वो आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है उसके साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा. जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं उनकी मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है कंपेयर टू फाइब्रस प्रोटीन, और ग्लोबुलर प्रोटीन है ये सेंसिटिव है टू स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच. तो जितने भी एंजाइम्स हैं या हार्मोन्स हैं, जो इंसुलिन, एंटीबॉडी, हीमोग्लोबिन, ये सारे क्या हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन हैं.
नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन ऑफ प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू देयर हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट। हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट यानी कि प्रोटीन की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे उसके बाद हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, उसके बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे प्रोटीन्स को एज सिंपल प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन एंड कंजुगेटेड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स जो होते हैं जब उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा एंड प्रोडक्ट, वो उसमें क्या होता है, सिर्फ अमीनो एसिड्स होते हैं और कुछ नहीं होता। यानी कि जब हम सिंपल प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट क्या होगा, सिर्फ अमीनो एसिड होंगे। और इसके एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। जो डिराइव प्रोटीन्स हैं वो डिग्रेडेड प्रोडक्ट हैं जो किससे मिलते हैं, ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन्स। जो डिराइव प्रोटीन्स हैं वो क्या हैं, डिग्रेडेड प्रोटीन्स हैं और वो किससे मिलते हैं, ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कंजुगेटेड प्रोटीन्स। इसके एग्जाम्पल हैं प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। नेक्स्ट है कंजुगेटेड प्रोटीन्स। कंजुगेटेड प्रोटीन्स में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस करेंगे जब उसका, तो एक तो हमारा प्रोटीन पार्ट होगा यानी अमीनो एसिड जो हाइड्रोलाइज करके क्या देगा, अमीनो एसिड होगा, और दूसरा पार्ट होगा नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये इंपॉर्टेंट है और ये कंट्रोल करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ दैट प्रोटीन। अगर हम उस प्रोटीन में कंजुगेटेड प्रोटीन से प्रोस्थेटिक ग्रुप को हटा दें तो वो प्रोटीन है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। सो द मेन फंक्शन ऑफ प्रोस्थेटिक group is to control the biological function of that protein। अब बायोलॉजिकल जो प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है उसके बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन या हीमोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन में जो प्रोस्थेटिक पार्ट है यानी नॉन प्रोटीन पार्ट है वो न्यूक्लिक एसिड है। ग्लाइकोप्रोटीन में जो आपका प्रोस्थेटिक पार्ट है वो क्या है, शुगर है। ग्लाइकोफॉर ग्लूको जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स हैं उससे रिलेटेड है। लिपोफॉर लिपिड्स, तो जो आपका प्रोस्थेटिक पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिपिड्स हो जाएंगे। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर के 4 लेवल हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो हमें क्या बताती है कि जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन्स हैं उसमें अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है। दूसरी है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो लोकलाइज या रीजनल स्ट्रक्चर होती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर हमें क्या बताती है, ओवरऑल शेप ऑफ द प्रोटीन। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट प्रोटीन्स और सब यूनिट्स की जो आपस में इंट्रैक्शंस है उसके बारे में बताती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेनली प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। So primary structure of protein refers to the sequence in which various amino acid components are joined with each other to form peptide chain। कि प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें क्या बताती है कि किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड एक पॉलीपेप्टाइड चेन में अटैच्ड है, कि पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है। Primary structures gives complete information about various covalent bond present in peptides। पेप्टाइड्स के अंदर कौन कौन से कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं उनका कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैन बी डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग। प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसके लिए हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो कि पेप्टाइड के अंदर या पॉलीपेप्टाइड के अंदर कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं, वो किस कंसंट्रेशन में आपस में प्रेजेंट है, यानी उनकी आपस में किस रेशियो में प्रेजेंट है। और थर्ड है उनकी आपस में लिंकेज क्या है, यानी उनका सीक्वेंस क्या है। सो in order to determine primary structure of a molecule we should know about which amino acid constitute the building block of that polypeptide chain or that peptide chain। कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं उस पेप्टाइड चेन को बना रहे हैं, अमीनो एसिड किस कंसंट्रेशन में है, और सीक्वेंस इन विच वेरियस अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर, किस सीक्वेंस में वो अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द
प्रोटीन, हमें सबसे पहले डिटरमाइन करना होगा कि अमीनो एसिड उस पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन कौन से हैं और वो किस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो ये डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हमें जो अपनी प्रोटीन है या पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको हाइड्रोलाइज करना होगा एसिड के साथ, एसिड के साथ, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, अमीनो एसिड। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अमीनो एसिड्स में टूट जाएगी। तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं 6 मोलर HCl और उस पॉलीपेप्टाइड को 6 मोलर HCl के साथ 24 घंटे तक रिफ्लक्स करते हैं, जिससे जो अमीनो एसिड है उनके आपस के पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाएंगे और रिएक्शन मिक्सचर में सिर्फ क्या रह जाएगा, अमीनो एसिड्स का मिक्सचर। सो एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड चेन of the peptide is done with 6 molar HCl and refluxing it for 24 hours, which gives a mixture of amino acid. अब ये जो अमीनो एसिड का मिक्सचर मिला हमें, इसको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से इन अमीनो एसिड्स को हम सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग बफर्स ऑफ प्रॉपर पीएच। जो हमारा अमीनो एसिड का मिक्सचर बना उसको हमने एक प्रॉपर पीएच के बफर में डिज़ोल्व करना है और उसको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो कॉलम है उसमें डाल देना है। जो अमीनो एसिड टाइटली बाउंड होगा आयन एक्सचेंज रेजिन के साथ वो तो लास्ट में इल्यूट होगा, जो लूजली बाउंड होगा वो पहले इल्यूट आउट हो जाएगा। अब जो अमीनो एसिड कॉलम से निकल रहे हैं, जो कॉलम से इल्यूट आउट हो रहे हैं, उस अमीनो एसिड को हम मिक्स करेंगे निनहाइड्रिन रिएजेंट के साथ और जो उसकी इंटेंसिटी होगी, पर्पल कलर की इंटेंसिटी होगी, उसको हम मॉनिटर करेंगे विद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड द इंटेंसिटी ऑफ द पर्पल कलर इज प्रोपोर्शनल टू द अमीनो एसिड प्रेजेंट। आपने क्या किया, अमीनो एसिड को पहले तो पॉलीपेप्टाइड को तोड़ा बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। अब जो हमारे पास अमीनो एसिड का मिक्सचर बना मिला उसको हमने HPLC, GLC या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से उनको अलग कर लिया। फिर जो हमारा अमीनो एसिड इल्यूट आउट होगा उसको हम मिक्स करेंगे किसके साथ, निनहाइड्रिन रिएजेंट के साथ। आपको प्रीवियस क्लास में बताया था अमीनो एसिड निनहाइड्रिन के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, पर्पल कलर देते हैं। अब उस कलर की इंटेंसिटी को हम मॉनिटर करेंगे किससे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। The absorbance is plotted against the time और amount of solvent required to elution। फिर एक ग्राफ बनेगा विद किसके साथ, absorbance वर्सेस या इंटेंसिटी वर्सेस रिटेंशन टाइम। जो पोजीशन है पीक्स की वो हमें बताती है कि कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि रिटेंशन टाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है हर एक अमीनो एसिड का। तो विद रिटेंशन टाइम यानी पोजीशन ऑफ द पीक हमें बताएगी कि कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है और एरिया अंडर द पीक, उस पीक के अंदर कितना एरिया है, एरिया अंडर द पीक हमें बताएगा कि वो जो अमीनो एसिड है उनकी आपस में रिलेटिव अमाउंट क्या है, यानी कि वो किस रेशियो में प्रेजेंट है। तो जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको आप पहले आपने हाइड्रोलाइज करनी है, फिर अमीनो एसिड्स के मिक्सचर को सेपरेट करना है, फिर निनहाइड्रिन से मिक्स करके जो इंटेंसिटी है उसको आपने प्लॉट करना है अगेंस्ट रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम हमें बताता है कि कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि रिटेंशन टाइम जो है स्पेसिफिक होता है फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड, और एरिया अंडर द पीक यानी इंटेंसिटी जो है वो हमें बताती है कि वो अमीनो एसिड किस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो अमीनो एसिड कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले आपने हाइड्रोलिसिस की, फिर सेपरेशन की अमीनो एसिड मिक्सचर की आइदर यूजिंग HPLC, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी या GLC। फिर जो अमीनो एसिड आए उसको आपने निनहाइड्रिन से मिक्स किया और एक ये क्या आपने किया, क्रोमेटोग्राम डेवलप किया। अब ये क्या है, ये तो है स्टैंडर्ड, नीचे वाला क्या है, स्टैंडर्ड है कि कौन सा अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड का दिखा रखा है कि कौन से अमीनो एसिड का क्या रिटेंशन टाइम है। और ये जो ऊपर वाली पीक्स हैं ये आपकी पीक्स आ रही हैं। अगर ये वाली पीक जो है ये किसकी है, ग्लाइसिन की है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पीक्स आई हुई है, ये एस्पार्जिन की है, ये ग्लाइसिन की है, ये हर एक की ना स्पेसिफिक पीक होती है।
तो ये जो पीक्स हैं ये बताती हैं कि कौन कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट है। तो ये पीक आई है किसकी, एलानिन की आई है, ग्लाइसिन की आई है, एस्पार्टिक एसिड की आई है, फिनाइल एलानिन की आई है और आर्जिनिन की आई है। और ये जो एरिया है, इस पीक के नीचे का जो एरिया है ये हमें बताता है ये आपस में किस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो ये जो है आपका इस क्रोमेटोग्राम से पता चल रहा है कि आपका जो अमीनो एसिड का मिक्सचर है इसमें है एलानिन है, आर्जिनिन है, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लाइसिन है और फिनाइल एनालिन है। बाकी सारों की कंसर्न रेशियो तो 1 है, लेकिन ग्लाइसिन इनके रिस्पेक्टिव किस रेशियो में प्रेजेंट है, 2। यानी बाकी सारे अगर एक एक बार प्रेजेंट होंगे तो ग्लाइसिन कितनी टाइम प्रेजेंट होगा, 2 टाइम्स प्रेजेंट होगा। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटी और या HPLC से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके अंदर कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं by comparing it with the retention time of standard amino acid, और वो किस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है वो हम कैसे बताएंगे, by comparing the peak area under the peak of each amino acid. Now after determining the type of amino acid and in which concentration they are present, the next step is to determine the sequence in which various amino acids are attached with each other in a polypeptide chain. So after identifying the composition of amino acid present in the polypeptide chain, the next step in the primary structure determination is determining the sequence in which various amino acids are attached with each other. अब सीक्वेंस अमीनो एसिड का कैसे पता लगाते हैं, बाय टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस। टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस क्या होता है, हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जैसे आपको पहले ही बताया था दो टर्मिनल होते हैं, एक एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल होता है। जहाँ NH2 ग्रुप फ्री आता है जिस एंड पे वो होता है एन टर्मिनल, जहाँ CO नेगेटिव फ्री होता है वो होता है सी टर्मिनल। तो इन टर्मिनल के जी एन टर्मिनल पे कौन से अमीनो एसिड है, सी टर्मिनल पे कौन से अमीनो एसिड है, दीज अमीनो एसिड आर आइडेंटिफाइंग बाय यूजिंग स्पेसिफिक रिएजेंट्स। अब वो स्पेसिफिक रिएजेंट्स एन टर्मिनल के लिए अलग हैं और सी टर्मिनल के लिए अलग होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस। तो सीक्वेंस डिटरमाइन करने के लिए कि हम पॉलीपेप्टाइड चेन है, the whole process consisting of treating the given polypeptide chain with suitable reagent। अगर आपने एन टर्मिनल वाला डिटरमाइन करना है तो उसके अलग रिएजेंट है, सी टर्मिनल वाला डिटरमाइन करना है तो उसके अलग रिएजेंट है। तो जो सुटेबल रिएजेंट चूज़ करके मान लो हमने एन टर्मिनल का रिएजेंट चूज़ किया तो उसकी रिएक्शन हम कराएंगे पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ। तो जो एन टर्मिनल वाला रिएजेंट है वो एन टर्मिनल अमीनो एसिड के साथ जाके लिंक हो जाएगा और हम उस प्रोटीन को कहेंगे टैग्ड पेप्टाइड। The whole process consists of treating the given polypeptide with a suitable reagent which react either with N-terminal or C-terminal amino acid residue to form tagged peptide। जब ये रिएजेंट है जाके या तो एन टर्मिनल के साथ या फिर सी टर्मिनल के साथ जाके जब अटैच हो जाएगा फिर जो पेप्टाइड बनेगा उसको हम बोलते हैं टैग्ड पेप्टाइड। अब इस टैग पेप्टाइड की हम क्या करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे जो क्या रिलीज़ कर देगा, टैग्ड जो अमीनो एसिड है उसको रिलीज़ कर देगा फ्रॉम पॉलीपेप्टाइड चेन। जो जैसे एन टर्मिनल वाला अमीनो एसिड है उसको हमने टैग किया तो वो नेक्स्ट अमीनो उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो नेक्स्ट अमीनो एसिड के साथ जो अटैच है उसकी अटैचमेंट को क्या कर देगा, तोड़ देगा और अमीनो एसिड जो एन टर्मिनल वाला अमीनो एसिड है वो टैग्ड रह जाएगा रिएजेंट के साथ और बाकी जो पेप्टाइड चेन है वो अलग हो जाएगी और वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन अलग होगी उसमें जो अमीनो एसिड होगा वो 1 लेस होगा। Depending upon the nature of the terminus, there are 2 type of reagent, एक है N terminal residue analysis, एक है C terminal residue analysis। सबसे पहले हम करेंगे N terminal residue analysis।
एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस का जो मेथड, जो रिएजेंट आपके सिलेबस में है वो है एडमैन मेथड। इसमें जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो है फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड। ठीक है, फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। अब ये फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड ये NH2 ग्रुप के साथ जाके लिंक कर जाएगा, यानी एन टर्मिनल वाला जो अमीनो एसिड है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एन फिनाइल थायोकार्बमाइल पेप्टाइड, जिसको हम बोलते हैं PTC। अब जब हम इस PTC की माइल्ड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो एन टर्मिनल अमीनो एसिड है वो सेपरेट हो जाएगा एज फिनाइल थायोहाइडेंटाइन विच इज़ आइडेंटिफाइड क्रोमेटोग्राफिकली। तो एडमैन रिएजेंट क्या हो गया, फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड, फिनाइल N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, ये है आपका एडमैन रिएजेंट। और इन डाइल्यूट एल्कली ये हम रिएक्शन कैरी कर देते हैं। तो फिनाइल जो आइसोथायोसाइनेट है ये एन टर्मिनल पे जो अमीनो एसिड है उसके साथ जाके लिंक हो जाएगा और क्या बना लेगा, PTC पेप्टाइड। फिर जब हम इसकी माइल्ड हाइड्रोलिसिस करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, फिनाइल थायोहाइडेंटोइन। और ये फिनाइल थायोहाइडेंटोइन है जो PTH है ये स्पेसिफिक होता है फॉर ए अमीनो एसिड। इसका जो मतलब हर एक अमीनो एसिड का स्पेसिफिक PTH होता है, उससे हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन से अमीनो एसिड का PTH है और इससे डिटरमाइन कर लेंगे कि एन टर्मिनल पे कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है। अब एक हमने एन टर्मिनल अमीनो एसिड हटा दिया, अब उस पॉलीपेप्टाइड चेन का नया एन टर्मिनल बन गया, नया अमीनो एसिड आ गया। फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे एडमैन मेथड से, फिर वो एन टर्मिनल पे जो अमीनो एसिड है उसको सेपरेट कर लेगा और फिर जो फिनाइल हाइडेंटोइन बनेगा वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन से अमीनो एसिड का। इस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे कि इसका सीक्वेंस क्या होगा, जो आपका पॉलीपेप्टाइड है इसका सीक्वेंस क्या होगा। अब ये है आपका इसका मैकेनिज्म, ये है फिनाइल हाइडेंटाइन, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एन टर्मिनल ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। पहले ये क्या बनाएगा, PTC बनाएगा, उसके बाद लास्ट में पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बना लेगा, PTH, जिसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से अमीनो एसिड का ये PTH है। ये आपका एन टर्मिनल रेजिड्यू एसिड एनालिसिस प्रोटीन है, ये पॉलीपेप्टाइड में तोड़ लिया। अब इस पॉलीपेप्टाइड की रिएक्शन कराई फिनाइल हाइडेंटोइन से, ये लिंक कर गया फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड से रिएक्शन करेंगे, फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड लिंक कर जाएगा फ्रॉम एन टर्मिनल ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, ये इसने बना लिया PTC की फिर माइल्ड कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या बना लेगा, PTH। इस PTH को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है। और जब ये जो कनेक्शन हुआ इससे हमने ये PTC आइसोलेट किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजिड्यू या शॉर्ट एंड पेप्टाइड, जिसमें क्या हो जाएगा, एक अमीनो एसिड कम होगा। एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप क्या है मैकेनिज्म का, जो आपका एन टर्मिनल अमीनो एसिड है उसके नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अटैक करेगा कार्बन पे जो किसके साथ, सल्फर के साथ लिंक है, S क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। अब S कार्बन के साथ दोबारा बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ लिंक्ड है वो जो एन टर्मिनल वाले से हाइड्रोजन ले लेगी और वापस एन टर्मिनल के नाइट्रोजन पे क्या आ जाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपको मिल जाएगा फिनाइल थायोयूरिया। स्टेप 2 में क्या होगा, प्रोटोनेटेड फिनाइल थायोयूरिया लेंगे, ऑक्सीजन ने क्या ले लिया, H पॉजिटिव ले लिया। अब ये जो कार्बन का डबल बॉन्ड है अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बनिल कार्बन पे, कार्बन सल्फर के साथ लिंक्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर बेस जो है एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन पे और ये पॉलीपेप्टाइड चेन अलग होगी और ये आपको क्या मिल गया, PTC। अब ये जो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो आपको थायोएज़ोलिन PTC मिला इसको न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कराएंगे, न्यूक्लियोफाइल कार्बनिल कार्बन पर अटैक करेगा, O नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, फिर O दोबारा बॉन्ड बनाएगा तो S के ऊपर क्या आ जाएगा, ये S वाला बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा। फिर ये क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये अटैक करेंगे कार्बन पे, ये O नेगेटिव हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा। फिर जब O नेगेटिव वापस इस पर जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का लॉस हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, फिनाइल हाइड्रोजन ट्वाइन PTH। और ये जैसे आपको पता है PTH जो होता है स्पेसिफिक होता है फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड। इसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे एन टर्मिनल पे कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है। ये तो था एन टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस, जो हम किससे करेंगे, एडमैन मेथड से। वैसे सेंगर मेथड भी होता है और डेंसाइल मेथड भी है फॉर डिटरमाइनिंग एन टर्मिनल अमीनो एसिड, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है सी टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस। जैसे एन टर्मिनल में हम जो एन टर्मिनस है उस पर कौन सा अमीनो एसिड है वो डिटरमाइन करते हैं। सी टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस में हम जो रिएजेंट लेंगे वो कौन सा अमीनो एसिड डिटरमाइन करेगा, जो सी टर्मिनल पे प्रेजेंट है। इसमें जो आपके सिलेबस में है वो है एंजाइमेटिक मेथड यानी सिलेक्टिव हाइड्रोलिसिस। इसमें जो हम एंजाइम यूज़ करते हैं वो है कार्बोक्सी पेप्टाइड, जो है सिलेक्टिव फॉर क्लीविंग द पेप्टाइड बॉन्ड अल्फा टू सी टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड। जो सी टर्मिनल अमीनो एसिड है उसके अल्फा पोजीशन पे जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये स्पेसिफिकली उसी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है। So the process involves the treatment of peptide with enzyme when a free amino acid along with degraded protein is formed। इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको हम कार्बोक्सी पेप्टाइड से ट्रीट कराएंगे, तो वो जो सी टर्मिनल पे अमीनो एसिड है उसको अलग कर देगा और रेस्ट ऑफ द पेप्टाइड चेन को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो अमीनो एसिड जो सी टर्मिनल पर प्रेजेंट है वो हम डिटरमाइन कर लेंगे और फिर जो आपका न्यू पेप्टाइड बना उसको हाइड्रोलाइज कर लेंगे हम कार्बोक्सी पेप्टाइड से। ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे और उससे हम डिटरमाइन कर लेंगे कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें सी टर्मिनल पे कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट है। अब ये जितने भी मेथड हैं अभी तक, जैसे एन टर्मिनल से 40 अमीनो एसिड तक का सीक्वेंस डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें भी जैसे कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज है या हाइड्रोलिसिस करते रहते हैं तो मिक्सचर्स आ जाता है और उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो आपका पेप्टाइड्स हैं उनको पॉलीपेप्टाइड है उनको छोटे छोटे पेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड उनमें तोड़ देते हैं, फिर उनके अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिटरमाइन करते हैं और फिर आपस में उनकी ओवरलैपिंग से हम निकाल लेते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। जैसे ये सी टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस है, ये आपका कार्बोक्सी पेप्टाइड एंजाइम है, ये यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एंड है, इसके अल्फा का जो बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड ये है, इसको यहाँ पे ये क्या कर देगा, क्लीव कर देगा और आपको एक तो ये डिग्रेडेड पेप्टाइड मिल जाएगी और साथ में आपको सी टर्मिनल अमीनो एसिड मिल जाएगा जिसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सी टर्मिनल पे कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है। That's all for today. In next lecture, I will discuss about secondary, tertiary and quaternary structure of proteins. Thank you.